Good morning, students. Today I'm going to teach you about another topic of the chapter chemical coordination and integration. So let's begin. Now you know about the endocrine glands and their hormones as I mentioned in the previous videos. Okay. However, hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine glands. For example, in this topic, you will learn about the hormones of the heart, kidney, and the gastrointestinal tract. Their hormones are actually secreted by some tissue, not by the some endocrine glands. So first of all, the atrial wall of our heart secretes a very important peptide hormone, which is called atrial natriuretic factor. Okay, atrial natriuretic factor, which decreases the blood pressure. When blood pressure is increased, ANF means atrial natriuretic factor, which decreases ब्लड प्रेशर. ठीक है, अब क्या हो जाएगा जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, ये क्या करेगा, कैसे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा? इट कॉजेज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर. Okay, so this is the first or one type of the tissue, the atrial wall. ठीक है, जो सिक्रीट करता है हार्मोन जिसका नेम है ANF. Next is juxtaglomerular cells of the kidney produces erythropoietin hormone. ये हमने सभी चीज़ें जो है प्रीवियस ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर्स में डिस्कस की है इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो किडनी में देयर इज juxtaglomerular cells of the kidney and they produces erythropoietin, which is a hormone, and it stimulates the erythropoiesis. What does the word erythropoiesis means the formation of the RBCs, red blood cells की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. व्हाट? दिस erythropoietin hormone from the juxtaglomerular cells of the kidney. Next, endocrine cells secrete gastrin secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. सो जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, okay, they secrete four major type of the peptide hormones. So these four peptide hormones are gastrin secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. कहाँ से रिलीज होते हैं? वो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उनके एंडोक्राइन सेल से. ठीक है. So what are the function of these hormones? Gastrin act on the gastric glands and stimulate the secretion of the HCl and the pepsinogen, which is the protein digestive enzyme. Secretin की अगर बात करें, they act on the exocrine pancreas and stimulate the secretion of the water and bicarbonate ions. Whereas the CCK means cholecystokinin, acts on the both pancreas and gallbladder and stimulate the secretion of the pancreatic enzymes and bile juice from the liver. And then last, gastric inhibitory peptide. So the word inhibitory means inhibition, so it inhibits gastric secretion and motility. Next one is the mechanism of the hormone action. So hormone produce their effect on the target tissue by binding to the specific proteins called hormone receptors. So जो भी hormones हैं वो क्या करते हैं, वो अपना एक्शन कैसे करेंगे, कैसे अपना वर्क करेंगे ब्लड में. तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड में जो है ये डायरेक्ट रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द ग्लैंड. दे आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी डक्ट फ्रॉम विच दे आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट ऑर्गन. ठीक है, तो टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचने के लिए इनके पास कोई मीडियम चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए इन्हें. तो ब्लड जो है एज अ व्हीकल वर्क करता है सो दैट जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपरली अपनी टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाए. ठीक है, सो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. सेकेंड थिंग कि दे आर वेरी स्पेसिफिक, हॉर्मोन्स आर वेरी स्पेसिफिक. वाई? बिकॉज जो भी कोई पर्टिकुलर हार्मोन है वो एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करता है. ऐसा तो है नहीं कि
ब्लड में जो है ब्लड जो है वो वेरियस ऑर्गन से कनेक्टेड है, तो वो क्या कर सकता है, ब्लड जो है वो वेरियस ऑर्गन के पास भी उन हॉर्मोन्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज हॉर्मोन्स आर वेरी स्पेसिफिक। सो जहाँ पर इनका फंक्शन है, जहाँ पे जिस टारगेट पर इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है वहीं पे जाके जो है ये एक्ट करेंगे, ठीक है। सो कैसे एक्ट करेंगे, बिकॉज देयर इज सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके किसी हार्मोन ने वर्क करना है, सो दीज वॉल ऑफ दीज ऑर्गन, ठीक है, दे हैव सम रिसेप्टर्स, और यहाँ पे आके हार्मोन जो है वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स, एक तो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, सो एंड द अदर वन आर द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। दो तरह के, मेम्ब्रेन बाउंड एंड इंट्रासेलुलर। एंड व्हाट आर द मेम्ब्रेन बाउंड? द नेम सजेस्टेड, द hormone receptor that are present on the cell membrane of the target cell, and the intracellular receptors which present inside the target cell, ठीक है। इनसाइड में जो प्रेजेंट होंगे वो इंट्रासेलुलर है आई, और जो आउटसाइड है बाहर की तरफ वो होंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ओके। सो उसके बाद क्या होगा कि जो भी हार्मोन आएगा अगर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो वो यहाँ के रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनर में है, इंट्रासेलुलर है, तो वो यहाँ के रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, एंड देन रिसेप्टर्स आर वेरी स्पेसिफिक, हर एक के लिए पर्टिकुलर हार्मोन के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। दिस कॉम्प्लेक्स लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू, ठीक है। ये क्या करेगा, कुछ भी चेंजेस करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो है वो सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस उसके वजह से प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से जो टारगेट टिश्यू होगा वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो नेक्स्ट वन आर द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द हॉर्मोन, ठीक है। सो यहाँ पे तीन तरह के, और वी कैन सी दैट स्पेसिफिकली 4 टाइप के हॉर्मोन्स हैं। फर्स्ट वन आर द पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, देन स्टेरॉइड्स, देन आइडोथायरोइड्स एंड आइडोथायरोनिन एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन में कौन से आते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ओके। एंड स्टेरॉइड्स में कौन से आते हैं? कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन्स आते हैं, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये हार्मोन्स जो है वो आते हैं। So next one, hormones that interact with the membrane bound receptors generate secondary messengers. इस टॉपिक पे जाने से पहले हम एक बार मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, जो मतलब फंक्शन क्या है, हार्मोन कैसे मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स, लेट मी go to the next slide. So this is the slide where you can see that the hormones which attach to the membrane receptors, ठीक है। सो दिस इज द मेम्ब्रेन, ये जो है मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, और देयर इज अ रिसेप्टर, यहाँ पे एक रिसेप्टर है। सर्टेन लोकेशंस होती हैं, और उन लोकेशन पे आके हार्मोन अगर बाइंड करता है, स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होने के बाद क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे, और चेंजेस होने की वजह से जो भी टारगेट ऑर्गन है अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो जो इंट्रासेलुलर होते हैं वो तो डायरेक्ट यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आके, और यहाँ पे सर्टेन कोई भी लोकेशंस बनी होती है, ठीक है। लेट मी रेज दिस, डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, उसके बाद यहाँ पे कोई रिसेप्टर बना होगा और वहाँ पे आके बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। बट मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स जो होते हैं वहाँ उनका फंक्शन कुछ अलग तरह से होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में जाके एक्ट नहीं कर सकते हैं, वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स होंगे लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद क्या करेंगे, अटैच होने के बाद एक रिस्पॉन्स
जनरेट होगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, ये इस रिस्पॉन्स की वजह से, मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जनरेशन होती है कुछ साइक्लिक एएमपी की या कैल्शियम आइंस की, ठीक है, जिनको हम सेकेंडरी मैसेंजर्स बोलते हैं या सेकेंड मैसेंजर बोलते हैं। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि hormone hormones that interact with the membrane bound receptor generate second messenger, ठीक है, do not enter the target cell। जो membrane bounded होते हैं वो टारगेट सेल के अंदर तो एंटर नहीं कर सकते हैं, सो वो क्या करते हैं, बाहर से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद एक सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं विच रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड मैसेंजर जनरेट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयंस। ये क्या करेंगे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो होंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन कैन बी कम्स फ्रॉम दैट briefly discuss the mechanism of the action of the follicular stimulating hormone, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्शन आप लोगों ने बताना है। ओके, इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स, और मेनली जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। सो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे रिसेप्टर्स के साइड पे आके बाइंड हो जाएगा। जब वो रिसेप्टर्स की साइड पे बाइंड हो जाता है देन रिस्पॉन्स वन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमने यहाँ पिक्चर में देखा, ठीक है। देयर इज रिस्पॉन्स वन, ठीक है। रिस्पॉन्स वन जो है उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, रिस्पॉन्स वन में एडिनाइल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इस एडिनाइल में क्या होगा, ये एडिनाइल जो है आगे जनरेट करेगा साइक्लिक एएमपी को, ठीक है। हमने प्रीवियसली पढ़ा कि उसमें कुछ जनरेट होते हैं, सेकेंड मैसेंजर जनरेट होते हैं। सो यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर जो है साइक्लिक एएमपी जो है वो जनरेट हो रहा है विच प्रोड्यूसेस द बायोकेमिकल रिस्पॉन्स एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल अकर, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है कि जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया तो वो क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल अकर्स हियर। हाउ, ये हार्मोन एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, फिर रिस्पॉन्स वन जनरेट होगा, फिर साइक्लिक एएमपी जनरेट होगा, देन बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा और मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफिन फॉलिकुलर अकर, ठीक है। सो दिस वन इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन, how the action of the hormone changes into the biochemical response, okay। So thank you so much for watching the video.